مالک ہیں. بیٹیاں ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہیں. بیٹیوں سے یہ ہماری شان ہے. بیٹیوں سے یہ خوبصورت یہ زمین و آسمان ہے. کل کی بیٹیاں آج ہماری مائیں ہیں تو آج کی بیٹیاں کل کی مائیں ہیں. بیٹیاں ہی مردوں کی نگہبان ہیں. بیٹیوں سے ہی چل رہا یہ جہان ہے. پر افسوس کہ ہمارا یہ سماج بیٹیوں کی قدر نہیں کرتا. آئیے آپ کو ایک ایسے گھر میں لے چلتے ہیں جہاں ایک بیٹی نے جنم لیا تو باپ ماں اور بیٹی دونوں کو اسپتال میں بے سہارا چھوڑ کر گھر چلا آیا. بیچاری کمزور ماں بیٹی کو لے کر تنہا گھر پہنچتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بیٹی کی ولادت کے بعد آپ اسپتال نہیں آئے, بچے کو دیکھا بھی نہیں. کتنی پریشانی ہوئی, وہاں کوئی دوا تک لانے والا نہیں تھا. کیا بات ہے, سب خیریت تو ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ دیکھیے کتنی پیاری بچی ہے. ہٹاؤ اسے یہاں سے, میں اس کا منہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا. اس معصوم سے کیوں ناراض ہے؟ آخر اس نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے میرے خواب مٹی میں ملا دیے. میں نے سوچا تھا ایک بیٹا ہے, ایک اور ہو جائے گا تو دونوں مل کر میرا کاروبار سنبھالیں گے, میرے بڑھاپے کا سہارا ہوں گے. یہاں تو الٹا ہی ہو گیا. اب اس کے لیے جہیز کا انتظام کروں, پھر میں کس منہ سے لوگوں سے بتاؤں گا کہ میں ایک بیٹی کا باپ ہوں؟ یہ میرے لیے شرم کے باعث ہے. لاؤ ابھی اسے ختم کر دوں. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہماری بیٹی ہے. بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہیں. بیٹا اور بیٹی میں آخر کیا فرق ہے؟ ہم اس کی اچھی تعلیم و تربیت کریں تو یہ دنیا میں بھی ہمارا نام روشن کرے گی اور آخرت میں بھی ہمارے نجات کا ذریعہ ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنے والوں کو جنت میں اعلیٰ مقام ملنے کی بشارت سنائی ہے. لیکچر دینا بند کرو اور اسے میری نظروں سے دور ہی رکھنا. میری بچی, تیرے باپ نے تجھ سے نظریں پھیر لی, لیکن تیری ماں تیری اچھے سے اچھی پرورش کرے گی انشاءاللہ. او میری بیٹی پیاری سی گڑیا, تو ہے میری زندگی, تو جان میری, تو میری دنیا, تو ہی میری ہر خوشی. تجھ کو کھلاؤں, جھولا جھلاؤں, تعلیم دوں, دین تجھ کو سکھاؤں, خوشیاں تجھے دوں دونوں جہاں کی, میں چاند تارے تجھ پہ لٹاؤں. کوئی کمی ہو نہ تیری خوشی میں, بس یہی خواہش میری. او میری بیٹی پیاری سی گڑیا, تو ہے میری زندگی. اسوا سکھاؤں پیارے نبی کا, پہچانے تو پیارے نبی کا, پہچانے تو تاکہ حق آدمی کا. تجھ کو سکھاؤں ہے میری بیٹی, مقصد ہے کیا تیری اس زندگی کا, سجائے اخلاق سے تیری دنیا, عقبہ ہو روشن تیری. او میری بیٹی پیاری سی گڑیا, تو ہے میری زندگی, تو ہے میری زندگی, تو ہے میری زندگی. کیا ہو گیا ہے ہمارے سماج کو؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا حکم دیا. بیٹے اور بیٹی میں فرق نہ کرنے کی تعلیم دی. آج ان کے ماننے والے بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں, بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں, ان کے ساتھ گھر میں غیر برابری کا سلوک کیا جاتا ہے. انہیں کپڑے اور کھلونے تک میں بیٹوں کے برابر کا حق نہیں دیا جاتا. سب سے بڑھ کر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ انہیں تعلیم سے محروم کر دیا جاتا ہے, جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو سبھی کے لیے فرض قرار دیا ہے. آئیے آپ کو ایک بار پھر اسی گھر میں لے چلتے ہیں. وہ بیٹی جسے ماں گود میں لے کر گھر میں داخل ہوئی تھی اب 5 سال کی ہو گئی ہے.
शाज के एडमिशन के वक्त मैंने आपसे कहा था कि उसका एडमिशन इस्लामिक स्कूल में करा दे, लेकिन आपने उसका दाखिला कॉन्वेंट में करा दिया। मुझे उसके आसार कुछ अच्छे नहीं दिखते। नाफरमानी करता है, बात बात में गुस्सा करता है। इस्लामिक स्कूल में पढ़ता तो कुछ दीन सीखता, वालिदैन की इज्जत करना सीखता। तुम्हारी जितनी अकल है उतनी ही बात करती हो। मदरसे में पढ़ा के जिंदगी बर्बाद करनी है क्या? कॉन्वेंट में पढ़ेगा तो दुनिया में कामयाब इंसान बनेगा, MBA करके मेरा बिजनेस संभालेगा। लड़के के बारे में जो आपकी मर्जी थी किया। अब सुमैया 5 साल की हो गई है, उसका भी एडमिशन हो जाना चाहिए। मेरी माँ ने इसका इस्लामिक स्कूल में दाखिला करा दे। अब तो कई इस्लामिक स्कूल्स मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ दीन भी पढ़ा रहे हैं। तुम्हारी लाडली पर लुटाने के लिए मेरे पास फजूल पैसे नहीं, और फिर लड़की तो है, क्या जरूरत है महंगे स्कूल में पढ़ाने की? पढ़ाने का ज्यादा ही शौक है तो किसी सरकारी स्कूल में डाल दो, वरना उसकी भी जरूरत नहीं। ना उसे नौकरी करनी है ना बिजनेस। क्या हो गया है आपको? आप अटेंशन, कपड़े और खिलौनों में तो बच्ची के साथ नाइंसाफी करते ही हैं, अब एजुकेशन में भी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़के और लड़की में फर्क करने को मना फरमाया है। फिर तुम्हारा लेक्चर शुरू हो गया। मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर तुम्हारे बस में हो तो उसको पढ़ा लो। मुझे आपका चैलेंज मंजूर है। मैं अपने बच्चे की जिंदगी संवारने के लिए खुद मेहनत करूंगी, लेकिन उसे अच्छी दीनी व असरी तालीम दिलवाऊंगी। मैं ये साबित करूंगी कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। जब तुम ये कर लेना मुझे बता देना। ओ मेरी बेटी प्यारी सी गुड़िया, तू है मेरी जिंदगी, तू जान मेरी, तू मेरी दुनिया, तू ही मेरी हर खुशी। ओ मेरी बेटी तुझको है पढ़ना, बेटों से आगे तुझको है बढ़ना। हो फख्र माँ को तुझ पे लाडो, ऐसी बुलंदी पे तुझको है चढ़ना। तेरी मिसालें दे ये जमाना, ऐसी हो तू जा मेरी। ओ मेरी बेटी प्यारी सी गुड़िया, तू है मेरी जिंदगी। रहे तुझको ये याद ए मेरी बेटी, कि है माँ की फरियाद ए मेरी बेटी। इस माँ की इज्जत तेरे हाथ है, अब कभी हो ना बर्बाद ए मेरी बेटी। माँ का हो सर ऊंचा दोनों जहां में, ऐसी हो सीरत तेरी। ओ मेरी बेटी प्यारी सी गुड़िया, तू है मेरी जिंदगी, तू है मेरी जिंदगी, तू है मेरी जिंदगी। हमारा समाज औरत को हिकारत की नजर से देखता है। औरत को अबला और कमजोर समझा जाता है, लेकिन जब हम दौरे नबवी और दौरे सहाबियात में जाते हैं तो पाते हैं कि सहाबियात ने जिंदगी के हर मैदान में नुमाया किरदार अता किया है। औरत जब इशारों कुर्बानी देने पर आती है तो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बन जाती है। जब इल्म व फज़ल के मैदान में कदम रखती है तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहलाती है। जब हया व वफा कमरे दामन में समेटती है तो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहलाती है। यही नहीं, जब मैदान जंग में कदम रखती है तो उम्मे अम्मारा बनकर मर्दों का अंगुश बदंदा कर देती है। तालीम से महरूम की जाने वाली यही औरत जब ब्यूरोक्रेसी का कलमदान संभालती है तो दुनिया की पहली खातून कैबिनेट सेक्रेटरी शिफा बिन्त अब्दुल्ला बनकर हमारे सामने आती है। एक और औरत ने दुनिया से टकराने का चैलेंज कबूल किया था, उसे 20 साल गुजर गए। माँ ने बेटी को बेहतरीन दीनी व असरी तालीम दी, वो बेटी आज डॉक्टर है। बाप ने जिस बेटे को बड़े लाड प्यार से पाला था, वो बेटा आज उसके लिए वो वाले जान बना हुआ है। आइए चलते हैं एक बार फिर उसी घर में जहाँ बेटा बाप के साथ बदतमीजी से पेश आ रहा है।
पापा मुझे 50,000 रुपए चाहिए। कौन सी जरूरत पेश आ गई? मुझे दोस्तों के साथ शिमला टूर पर जाना है। अभी 2 महीने पहले ही तो तुम गोवा घूमकर आए हो। जाते वक्त 50,000 ले गए थे और वहां से फिर 50,000 रुपए मंगवा लिए। इसी तरह पैसे उड़ाते रहोगे तो मेरी 30 सालों की मेहनत से बनाया कारोबार खत्म हो जाएगा। ओ कम ऑन पापा, आपने सब किसके लिए बनाया है? मेरे लिए ना। वैसे भी आपके बाद ये सब मेरा ही तो है। अगर कुछ नुकसान हो रहा है तो मेरा, इसमें आपका क्या जाता है? शाज, तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म बाकी नहीं रही। आज तुम माँ बाप के सामने सिगरेट पीने लगे। ओ अम्मा, आप भी अनपढ़ दकियानुसी औरत हैं। मैं अब छोटा बच्चा नहीं, बालिग हूँ। मैं जो चाहूँ जैसा चाहूँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसका मुझे हक है। जो तुम्हारा दिल चाहे करो, लेकिन माँ बाप का एहतराम तो सीख लो। हाउ बैकवर्ड पेरेंट्स आई हैव गॉट। पापा मुझे अभी पैसे चाहिए, शाम तक टूर ऑपरेटर के पास जमा करवाने हैं, वरना मैं दोस्तों ग्रुप में शामिल नहीं हो पाऊंगा। अब फजूल उड़ाने के लिए तुम्हें पुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अब मैं कमजोर हो गया हूँ। अपनी आवारगी छोड़कर मेरे कारोबार में हाथ बटाओ। मुझे आप एक काम से कुछ लेना देना नहीं, मुझे बस पैसे चाहिए। दूर रहो कान, अब तुम्हें फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। यू माइजर ओल्ड मैन, पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी देगा। ये मेरी औलाद है। मैंने इसके लाड प्यार में क्या कमी की थी? इसकी हर खुशी पूरी करने की कोशिश की। आज वही मुझे धक्का देकर चला गया। आप गुस्सा ना करें। बेटा अगर नालायक निकल गया तो क्या हुआ? आपकी बेटी तो फर्माबरदार है, वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करती है। मेरा ये बेटा, जिसके ऐशो आराम के लिए मैंने सारी चीज फराहम की, उसका मेरे साथ आज क्या सलूक है? क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो हैं? हेलो बेटा सुमैया, तुम्हारे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, शायद सीने में दर्द है। तुम फौरन आओ। आप परेशान ना हो, हौसला रखें। सुमैया अभी आ रही है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अल्लाह ने उसके हाथ में बहुत शिफा दी है। क्या हुआ अब्बा को? अब्बा आप ठीक तो है ना? परेशान ना हो, कुछ नहीं हुआ है। बस एक इंजेक्शन में इंशाअल्लाह आप उठकर बैठ जाएंगे। क्या हुआ बेटा? माइनर हार्ट अटैक है, आप परेशान ना हो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। या अल्लाह, मेरे वालिद को सेहत कामिला अजीला अता फरमा। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तेरा गुनहगार हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं अब्बा? आप आराम करें। बेटी, मैं तुझसे शर्मिंदा हूँ। मैंने हमेशा तेरे साथ ज्यादती और नाइंसाफी की है। मैंने तुझे तालीम से भी महरूम रखना चाहा, लेकिन तूने आला तालीम हासिल करके मेरी इज्जत बढ़ाई है। अब्बा, मैं आप ही की बेटी हूँ, कुछ तो बाप का असर होगा। बेटी, मैं तुझे बाइसे-आर समझता था, पर जब लोग तेरी काबिलियत, दीनदारी और खुदा तरसी की तारीफ करते हैं तो मेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। ये सब उस तालीम और तरबियत का नतीजा है जो मुझे बचपन में अम्मी से मिला। मैं तुम्हारा भी मुजरिम हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारी दिल आजारी की, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम सही थी और मैं गलत। मुझे माफ कर दो। अब्बा, आपको आराम की जरूरत है, आप आराम करें। ओ मेरी बेटी, प्यारी सी गुड़िया, तू है मेरी जिंदगी। ओ मेरी बेटी, प्यारी सी गुड़िया, तू है मेरी जिंदगी। हूँ तेरा मुजरिम, मुझे माफ कर दे, नूरे नजर तू मेरी। ओ मेरी बेटी, प्यारी सी गुड़िया, तू है मेरी जिंदगी। खुशियाँ न दी मैंने, तुझको रुलाया
तेरी तरफ से मुंह मैंने मोड़ा, तूने मगर मुझको सर पे बिठाया। तेरी तरफ से रहा मैं जो गाफिल, बदकिस्मती है मेरी। ओ मेरी बेटी प्यारी सी गुड़िया, तू है मेरी जिंदगी, तू है किनारा मौजे बला में, मेरा सहारा है तू। तू आयशा फातिमा, तू खदीजा उम्मे अम्मारा है तू। तुझसे है वाबस्ता अब मेरी खुशियाँ, उम्मीद है तू मेरी। ओ मेरी बेटी प्यारी सी गुड़िया, तू है मेरी जिंदगी, तू है मेरी जिंदगी, तू है मेरी जिंदगी। जज़ाकल्लाह